Hello, everyone. I'm Jawad, founder of ExpertPin. ExpertPin is a platform where we have domain experts from various industries. If you're someone who's looking for help in personal and professional growth topics, you can always go to expertpin.com and find the relevant experts to connect to. And if you're someone who has years of experience, you can always go and become an expert on platform and start providing services to the audience. Uh, Today we have Khadija Riyad Today we have Khadija Riaz with us. She's NLP expert and she has been practicing for a bit now. It's an interesting topic. जहाँ पे I have been very much interested in learning about NLP practices. So let's find out more from her experience. So I'm going to hand it over to Khadija to explain a bit about what she does, what sort of practice she is in, and किस तरह से वो अपनी practices के through लोगों को help कर रही होती है. So what do you, Khadija? अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. बिल्कुल ठीक. Thank you for having me over and for your question. NLP के बारे में अगर हम बात करते हैं तो I'll first start off with what NLP is, because NLP को काफ़ी लोगों को लेके एक different understanding होती है. A lot of people have different definitions for themselves के what exactly NLP is. First, we can start with breaking it down into N, L, and P. By N we mean neuro, L is for linguistic, and P is for programming. So, neuro is our mind, the nervous system, our nervous system through which we experience things like we use our five senses to notice the event that's happening. So, that's our mind, our nervous system. Linguistic is, let's say, our language patterns, the way we communicate with people. And programming is how we are bringing all of the things together and how we are making sense of it in our mind. So, if we see something, we have a certain understanding of it. So how we accumulate it is depending on our programming, कि हम अगर किसी चीज को किसी नजरिए से देखते हैं तो इसलिए होता है कि हम अपने दिमाग में उसको लेके क्या मायने बना रहे हैं. अगर नेगेटिव है तो दैट टेल्स अस अ लॉट अबाउट आवरसेल्फ. अगर किसी चीज का अप्रोच हमें पॉजिटिव लगता है तो दैट्स एन इन्फॉर्मेशन फॉर अस. तो एनएलपी कंबाइन जो है, वी कॉल इट, इट्स अ bag of tools, or even techniques, or people also call it, like, let's say, strategies. तो इसमें क्या होता है, इट हेल्प्स यू टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव नैरेटिव, गेट यू एनीवेयर अराउंड. अगर आपको लगता है आप किसी भी नेगेटिविटी के होल्ड में है तो इट हेल्प यू टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एनएलपी इज बेसिकली अ स्टडी जहाँ पे आप किसी ऐसे एक्सलेंस चीज को या किसी अच्छी चीज को आप स्टडी करते हैं एंड यू रेप्लिकेट इट. यू इम्प्लीमेंट हाउ एग्जैक्टली यू कैन पिक अप द बेस्ट पार्ट फ्रॉम इट एंड इम्प्लीमेंट दैट इन योर ओन लाइफ. और आसान लफ्जों में अगर कहा जाए, एनएलपी को हम कहते हैं कि हमारे माइंड का एक यूजर मैनुअल है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स इन अ रियली होलिस्टिक मैनर. तो जहाँ आजकल दुनिया में हम कोई भी छोटी सी चीज लेते हैं वहां पे हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स मिलती है, बुकलेट मिलती है, किस तरीके इस चीज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए. अगर हम हेयर ड्राई लेते हैं या एसी ले रहे हैं या कोई भी नई चीज लेते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है कि भाई इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है. तो एनएलपी को उसी लिहाज से कहा जाता है कि ये हमारे माइंड के लिए एक यूजर मैनुअल है दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल एज वेल. I'll give you an example here, like think of your mind as a car and NLP as a GPS. Now, GPS is something that helps you navigate your destination. जहाँ आपको जाना है तो एक clear directions provide करता है, and also rerouting भी आती है कभी अगर आप गलत turn ले लेते हैं तो वो GPS आपको direct कर रहा होता है आपने किस तरफ जाना है. It helps you that way. So similarly, NLP is something that guides you, your thoughts and your behavior. And should you have any challenges that life is throwing at you, because life is such, it's not easy. ठीक है, तो जब भी कोई challenge आता है तो NLP helps you to adjust yourself. Okay, something is happening, it's bad, all right, how can we adjust ourselves, how can we work around it. तो NLP आपको उस ट्रैक में रखता है, सामने जो हर्डल आती है उसको कैसे आपने ओवरकम करना है उसके साथ आपको प्रिपेयर करता है. तो दैट्स एनएलपी. NLP helps you, it empowers you, and it also provides you with a way where you can help others as well. So yeah, that's NLP, something that provides you with solutions as well. तो अगर मैं कहूँ कि solution provide करता है, then people would be like कि किस तरीके के solution. तो NLP एक इतनी स्टडी है, ऐसी स्टडी है जहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. तो टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निक्स और इंटरवेंशंस हियर.
फर्स्ट वी स्टार्ट ऑफ विद माय फेवरेट वन, दैट इज एंकरिंग। अब एंकरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे आप एक टच को एक अपने एक इमोशनल स्टेट से लिंक कर देते हैं, जो आपको किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पे आप उसको एक्सेस कर देते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। People like, okay, how is that possible? So think of it when you're watching a TV, it comes with a remote. That remote gives you the power to choose whatever channel or whatever content you need to watch. ठीक है, तो similarly, what anchoring does for you is it provides you with your own remote, something that you can customize for yourself, and with just just a press of the button, it helps you access that state at your will. To give you an example, again, examples are something that I love because it helps you understand things and relate to it. So let's say कि आप एक कंपनी में गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, and you're sitting in the room. You know your name is gonna be called out any minute now. एंड आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आए, अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छी अपनी पूरी कम्युनिकेशन प्लान करके, व्हाट यू गोना टॉक अबाउट, व्हाट क्वेश्चंस आर गोना बी आस्क्ड, यू हैव ऑल ऑफ दैट, यू प्रिपेयर्ड। बट 2 minutes after, you like कि अच्छा मेरा नाम बुलाने वाले हैं, आपको हाथ में पसीने आ रहे हैं, you're nervous, you like you feeling that suffocating feeling. उस टाइम पे if you know how to use anchoring, anchoring is something कि okay, I know this, you press, you access a state। तो उस टाइम पे अगर आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, तो यू जस्ट नीड टू एक्सेस दैट कॉन्फिडेंस एट योर विल। यू आर लाइक कमांडिंग योर ब्रेन कि आई नीड कॉन्फिडेंस राइट नाउ। So your brain is like, all right, command accepted, and you'll feel that ooze of confidence all over your body. This is something could be, interesting as well. Something like, क्या बात कर रही हैं आप, ऐसा कैसा होता है? So it's like basically you are commanding your brain कि at this time I need confidence. Where is that confidence? And your brain is like, okay, we learned this thing. हमें जब हम ये करते हैं तो हमें confidence की जरूरत है, and your brain is like, all right, confidence it is, and you feel that confidence. And I'm not just saying this thing just for saying purpose. It has actually helped a lot of people. Some people has used this specific technique while they were meeting people for proposal as well. Now we have this culture in Pakistan, actually the trolley culture. तो वहां पे ये होता है ना कि we ladies have to go and talk to family who are visiting us at our home। तो वहां पे एक नर्वसनेस आती है, एक कहते हैं ना कि एक शर्म से आती है, शाइनेस होती है। भले से आप कॉन्फिडेंस कितना आप में हो, आप करियर वाइज कितने स्ट्रांग हो, इस चीज में कुछ लोगों को झिझक होती है। तो कुछ लोगों ने हमें ये फीडबैक दिया दैट दे हैव यूज्ड दिस स्पेसिफिक इंटरवेंशन एट दैट मोमेंट। विद जस्ट वन टच they were able to access that confidence state, and then they went ahead, and you're like there was something difference within me, ये पहले दफा ऐसे नहीं हुआ था। तो this thing is not just Hmm. with confidence, it can be with motivation, it can be with anything positive। मकसद ये है कि जिस मोमेंट पे आपने जो चीज फील करनी है, यू कैन एक्सेस दैट एट वट एवर पॉइंट यू वॉन्ट एंड वट एवर यू वॉन्ट। इट्स जस्ट यू नीड टू बी स्पेसिफिक विद वॉट यू वॉन्ट, यू नीड टू नो कि आपने चाहिए क्या। सो चले दैट्स एंकरिंग। इस पे यहाँ पे सॉरी मैं आपको intervene करूंगा since we talked about intervention as well. हम्म। एक सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि अभी हम जिस तरह के सेशंस कर रहे हैं इट्स वेरी न्यू फॉर मी, इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव डन इन द पास्ट। आई एम समवन गुड एट कन्वर्सेशन वन ऑन वन, एक प्राइवेट सेटअप में बैठे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे, जनरल टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, बट सो आपने कॉन्फिडेंस की बात की, सो हाउ कैन आई यूज दिस? सो लेट्स टेक माय एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आई नीड दैट कॉन्फिडेंस, हाउ डू आई टच माई सेल्फ इन दैट साइड, किस तरह से टेक्निक को अप्लाई करना है? सो इफ यू टू डू दिस, Okay, so how exactly it happens is कि you need confidence right now. So training program में ऐसा होता है कि you are taught how you are linking this touch or this touch, where you are actually rewiring yourself or programming yourself that, okay, brain, okay, my conscious mind, if I do this or I do this, it means I am in need of confidence. I am in need of confidence right that moment. तो आपने ये एक चीज आप स्टिमुलस अटैच कर रहे हैं अपने ब्रेन को, आप कॉन्शियस माइंड होता है ना, आप उनको कमांड कर रहे हैं। यू आर टेलिंग इट कि इफ आई डू दिस, इट मींस ओके, आई नीड कॉन्फिडेंस एट दैट मोमेंट। यू आर लाइक ओके, कॉन्फिडेंस अगर आपको है तो, अगर अभी जैसे कि इसके लिए एक पूरी इंटरवेंशन होती है, इसको पूरा एक रन करने का एक तरीकेकार होता है, दैट इंशाल्लाह समडे वी वुड वांट यू टू जॉइन अस फॉर दैट, जो आप सीख सकें क्या होता है।
तो इसमें ये हो गया कि आपने अपने ब्रेन को कमांड कर दिया, ओके दिस मीन्स आई टेल यू कॉन्फिडेंस, यू नीड टू हेल्प मी आउट देयर एंड यू नीड टू गिव मी कॉन्फिडेंस. What's happening is we are interacting with a conscious mind and we are integrating with it. अपने आप से अपने माइंड को समझ रहे हैं, उनसे दोस्ती कर रहे हैं. तो you need to be हम्म very good हम्म friend with your mind, with your conscious and unconscious level. So that's the idea here कि आप उससे ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना के रख रहे हैं कि जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है. क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है सिचुएशन में, हम्म जब कोई ऐसी एडवर्स प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो वी जस्ट गो ब्लैंक. लाइक अब क्या करना चाहिए? अब क्या करूँ? समझ नहीं आ रहा. एंड देन यू आस्क समवन फॉर हेल्प. और जब वो कुछ हम्म ऐसी हेल्प देते हैं, यू लाइक अरे ये दिमाग में मेरे क्यों नहीं आया? इससे बड़ा अच्छा आइडिया दिया. क्योंकि वो हम्म चीज़ों को डिफरेंट नैरेटिव से देख रहे होते हैं. हमारी अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से इतनी अच्छी बनी नहीं होती है कि हम चीज़ों को समझ सकें कि इसका तरीका क्या हो सकता है, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं. तो मकसद यही है कि हम्म अपने माइंड के साथ ऐसी इंटरैक्शन रखना, उसको इस लिहाज से दोस्ती करना उससे, कि भाई मुझे इस वक़्त ये चीज़ की ज़रूरत है, आपने देनी है, ये आपका काम है. तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. दोस्ती कर रहे हैं हम अपने माइंड से कि आई नीड दिस, So, यू हेल्प मी आउट हियर. सो इन समरी इफ वी से कि मैं अपने माइंड को एक तरीके से पैटर्न करना शुरू कर दूं कि मैं जब भी अपने आप पिंच करूं, इट वर्क्स लाइक फॉर मी इन अ वे कि जहां पे मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आई ट्रेन माई सेल्फ, इफ आई पिंच एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम इन द जोन. So yeah, that's great by the way. But लोगों को ये समझने के लिए प्रॉब्लम होगी because that may be new for a lot of people and for me as well. हमने पहले बात की थी obviously in topics, because I get it when you're saying all of these things. But let's take it forward जहाँ पे हम लोगों से कि सवालात को ले सकें, कुछ टिपिकल सवालात जो आपके एरिया से रिलेटेड लोगों ने पूछे उनके बारे में बात कर सकें. सो इन एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आगे बढ़ूँ, तो पहली चीज तो ये, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ वी से कि लोग ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जहाँ पे मुझे एनएलपी फॉर एग्जांपल जितने भी एस्पेक्ट्स के बारे में आपने बात की वहां पे हेल्प कर सकता है, एंड देन आई नीड टू फाइंड द राइट सेट ऑफ एक्सपर्ट इन दैट एरिया कि मैं वहां जाऊं उससे पर्टिकुलर इस टॉपिक के बारे में हेल्प सीखना. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर मैं जिस तरह आपने बात करी कि व्हेन पीपल आर नॉट फीलिंग वेल, दे आर डाउन, कॉन्फिडेंस की कमी है और बहुत सारी एंजाइटी रिलेटेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कौन से वो कोर टॉपिक्स पे आप रिसेंटली लोगों के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली काम कर रही हैं, सो दैट इन फ्यू कमेंट्स पीपल कैन अंडरस्टैंड कि यार ये चार कॉमन प्रॉब्लम्स अगर मैं भी अपने साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, सो आई शुड सीक एंड हेल्प एंड देन कनेक्ट विद खदीजा राइट देयर एंड देन. ओके. अगर हम 4 कॉमन एरियाज़ की बात करते हैं, तो आई कॉल देम 4 ब्लैक क्लाउड्स. अब 4 ब्लैक क्लाउड्स इन अ सेंस कि जब बारिश आने वाली होती है, काले बादल आ जाते हैं, तो हाउ डार्कनेस स्प्रेड्स ओवर आवरसेल्फ. देयर इज़ नो लाइट, सब होता है लाइट ऑन करो, रोशनी चाहिए, अंधेरा हो गया है. तो सिमिलरली इन 4 एरियाज़ को मैं बोलती हूँ 4 काले बादल हो जाते हैं ये, जो इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा ले आते हैं. अब ये 4 क्या एरियाज़ होते हैं? सबसे पहला हो जाता है हमारा नेगेटिव थिंकिंग. अब नेगेटिव थिंकिंग ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में होता है ना कि हम बहुत ही प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाते हैं. अरे ये परेशानी हो गई, अरे ये मुश्किल आ गई, अरे ये चीज हो गई. तो वहां पे हम हर चीज को नेगेटिव में होते हैं. अगर मैंने ये किया और ऐसा हो गया, तो अगर इसका नतीजा गलत आया, तो हैविंग दैट कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग इन योर लाइफ के कुछ का खराब ही होना है. अच्छा तो कोई तरीका हो नहीं सकता. तो अभी कभी होता है ना, नॉर्मली आप किसी से बात करते हैं, अगर मैंने ऐसा किया ऐसा हो गया, तो या उससे भी बुरा हो गया, तो वी नेवर थिंक ऑफ इट इन अ वे कि यार ये अच्छा भी तो हो सकता है, पॉजिटिव आउटकम भी आ सकता है. आई हैव नेवर सीन एनी पर्सन इन माय लाइफ वुड कम अप एंड से कि हाँ उसका आउटकम पॉजिटिव हो सकता है. तो नेगेटिव थिंकिंग इज द फर्स्ट ब्लैक क्लाउड दैट पीपल ऑफन कम अप टू अस के दिस इज समथिंग दैट आई एम फेसिंग. और नेगेटिव थिंकिंग के साथ साथ होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक. You talk really bad to yourself. That self-talk is like, hey, I'm not a good person, I don't deserve it. तुम बेवकूफ हो, तुम silly हो. We tend to call ourselves such things. हम खुद को भी बोलते हैं यार मैं क्या पागल हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ. तो that's something that we do on daily basis. However, we do not understand how much it's harming us. Our mind is listening. Okay, हम ऐसे हैं. Okay, हम ये करते हैं. तो when it listens to all of that, it's manifesting it. तो negative thinking या negative self-talk, that's the first thing. Second thing would be negative emotion. Now, this is a second obstacle that we face, and a lot of people come up with this concern कि negative emotions बहुत हैं, गुस्सा बहुत आता है.
Now what I tell people is कि emotions are neither good or bad. The reaction you give to it, the behavior that you produce, that's negative. तो अब कहते हैं लोग कि गुस्सा बहुत है, गुस्से की वजह से मैं ये करता हूँ। आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए। इमोशंस आर मेंट फॉर यू टू कंट्रोल देम रादर देन देम कंट्रोलिंग यू। तो इफ यू आर समवन हु एक्चुअली लैशेस आउट ऑन अ पर्सन कि हाँ यार सॉरी गुस्सा आ गया था, नो दैट्स नॉट हेल्दी। गुस्सा हम्म, आता है, सबको आता है, दे नीड टू कोप अप विद इट, दे नीड टू मैनेज इट। सो इफ यू आर समवन हु वाज लाइक अच्छा गुस्सा आ गया, चीजें फेंक दी, किसी और का गुस्सा कहीं और उतार दिया, तो दैट्स द नेगेटिव इमोशन कंट्रोलिंग यू। तो दिस इज समथिंग दैट कॉजेज हार्म, दैट वीकन्स you. तो दिस इज अनदर कॉमन एरिया ऑफ कंसर्न दैट पीपल कम अप टू अस के यार नेगेटिव इमोशंस बहुत हैं, गुस्सा बहुत आता है, या इस चीज का मुझे बहुत मसला है, वी नीड हेल्प देयर। Third thing would be limiting belief, yeah, limiting decisions. This is again on people who have such internal talk के I'm not good enough, लाइफ इज टू चैलेंजिंग फॉर मी, अगर मैं फिर से इसको ट्राई करूंगा मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, आई लैक द स्किल्स टू डू दिस, या पता नहीं है मेरी जिंदगी ऐसी है यार बेकार हो गई है। तो any such belief, any such narration where we are telling ourselves के we cannot do this, or we are where we are talking about any self doubt खुद पे कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, तो that's limiting belief or limiting decision. That's another problem. A lot of people come up and say कि यार पता नहीं मुझसे हो नहीं पाता, मैं काम नहीं कर पाता, मैं चीजों पे एक्शन नहीं ले सकता, आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, अब तो मुझसे नहीं होने वाला, मेरी बस की बात नहीं है। So this is something that people feel कि ये old age का है, but it's not just with old age. Very young people nowadays are coming up with this के मैंने 2 अटेम्प्ट किए हैं, मैं फेल हो गया, दोबारा तीसरा अटेम्प्ट करूंगा फेल होऊंगा, घर वाले फिर वही बात बोलेंगे। तो वहां पे लिमिटिंग बिलीव अगेन के दे आर फीलिंग के दो, जिस बिकॉज 2 दफा फेल हो गए तो तीसरी दफा भी फेल होना है। यू डोंट नो दैट, क्या पता तीसरी दफा में आप पास हो जाए। तो लिमिटिंग बिलीव इज वेयर यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ कि आप मुझे आगे इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि आप कुछ होना ही नहीं है। Fourth most common area of concern is inner conflict. Now this is where we are fighting a battle within ourselves. Okay, should I go with this option or should I go with that option? मुझे ये करना है पर मुझे ये भी करना है। You know where you are unable to decide and you are stuck in a loop. Option A or option B. Something where you feel like you've been teared apart. आपने अगर आपको एक टाइम था, आपके पास ऑप्शंस आए थे, आप उस पर डिसीजन नहीं ले पाए, and now your time is wasted. You couldn't decide for yourself. तो कॉन्स्टेंटली आप सोच रहे होते हैं मैं ये करूं या ये करूं, यू आर अनेबल टू अलाइन योर सेल्फ, तो दैट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। सो दीज आर द मोस्ट 4 कॉमन एरियाज जो आजकल लोगों के प्रॉब्लम होते हैं, एंड लाइक आई सेड आई कॉल देम काले बादल बिकॉज दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली स्प्रेड्स डार्कनेस इन आवर लाइफ। सो या। ठीक है, चलें, जबरदस्त। अच्छा, इसमें बाकी सारे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो फिर दैट मेक्स ऑल द सेंस। नेगेटिविटी की बात करें, नेगेटिव सेल्फ टॉक टॉक की बात करें, या फिर इमोशंस की बात करें जिनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो चौथी बात आपने की कॉन्फ्लिक्ट की, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के दो ऑप्शंस हैं, क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है। सो इस पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो ये बड़ा कॉमन है, इसलिए भी बिकॉज बहुत सारे लोग नॉट जस्ट इन देयर ओन पर्सनल वेलबींग टॉपिक बट जनरली प्रोफेशनली भी जब आपसे हेल्प की बात कर रहे होते हैं, मुझसे रीच आउट करें, किसी भी एक्सपर्ट से बात करें, सो दे हैव ऑप्शंस बट दे आर नॉट वेरी मच श्योर के। एक तो वो चीज होती है, कन्विक्शन का एक लेवल है आपका कि आप कहते हैं कि यार मुझे ये करना है बट ये चैलेंजिंग लग रहा है, एंड यू जस्ट बूस्ट देम इन द वे कि यार चैलेंजिंग है बट इफ यू वांट रियली, इफ यू वांट टू डू इट जस्ट डू इट, राइट। फिर इसके बाद आप चीजें फोकस करते हुए उसको सॉल्व करते हुए चले जाओगे, एंड यू कैन बिल्ड अ पाथवे फॉर देम। बट जनरली स्पीकिंग, हाउ डू यू, इफ समबडी इज अनक्लियर कंप्लीटली ऑन एवरी लेवल दैट यू कैन थिंक ऑफ, सो वो कैसे हम्म। ब्रेक डाउन करेंगे और कैसे उसको हेल्प करेंगे कि ये दो एरियाज उसने बताया मेरे पास ये ऑप्शन है बट मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए लिटरली, अगर इस किसी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, सो हाउ डू यू स्टार्ट विद? Okay, inner conflict is something that is very common because when presented with options, we as human being like अच्छा ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, या मैं फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाऊं या मैं यहाँ पे रुक के अपना बिजनेस खोल लूं। यू नो सच ऑप्शंस इज समथिंग दैट कंफ्यूजेस अस कि हमें आगे करना क्या है। तो थैंक्स टू एनएलपी अगेन, इस स्पेसिफिक मसले के लिए, स्पेसिफिक कंसर्न के लिए वी हैव एन इंटरवेंशन एंड वी कॉल इट पार्ट्स इंटीग्रेशन। अब पार्ट्स इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे आप दो ऑप्शंस में बटे हुए हैं,
ये करना चाहिए या ये करना चाहिए. लेट्स से कि शुड आई सेव और शुड आई ट्रैवल द वर्ल्ड बिकॉज दैट्स माई पैशन. तो जब आप दो अपने सवाल के बीच में आप जगल कर रहे होते हैं, तो ये जो पार्ट्स इंटीग्रेशन वाली टेक्निक होती है एनएलपी की, वो आपको हेल्प करती है कि कैसे आप इसको रिजॉल्व करें, बिकॉज दीज बोथ आर लाइक पार्ट ऑफ यू. ये दोनों आपका ही हिस्सा है, आपकी ही स्ट्रगल है, आपके ही सवालात हैं. कहीं से अंदर से ये स्टेम अप हुए हैं. यहाँ पे कुछ चल रहा था, इसी वजह से आप दोनों को लेके कॉन्फ्लिक्ट है. सो यू स्टार्ट ऑन रिजॉल्विंग थिंग्स फ्रॉम हियर, कि ये आखिर मसला क्यों है. Figuring out the root cause. Why exactly is this concern a problem for you? अगर इसको करते हैं तो क्या होता है, अगर इसको करते हैं तो क्या होता है. एंड अल्टीमेटली जब हम कंक्लूजन में आते हैं तब ये दोनों एक पार्ट बन जाते हैं, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि इनका अल्टीमेटली गोल एक ही था. However, we were just looking at things from a very bird's eye view. हम चीजों को ऊपर से देख रहे हैं. अगर आप उनकी गहराइयों में जाके देखते ना, तो आपको पता चलता है इन दोनों का मकसद एक ही था, बट हम सिर्फ ऊपर से सोच रहे थे तो हम कॉन्फ्लिक्टेड थे. तो पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या करता है, आपको इस ऑप्शन की गहराइयों में लेके जाता है, इस ऑप्शन की गहराइयों पे लेके जाता है, और अल्टीमेटली ये दोनों सेम होते हैं. ये हमारा माइंड बताता है कि भाई ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ आपको दो ऑप्शन मिल गए थे, इसी वजह से आप कंफ्यूज थे. इनका जो एक मेजर गोल है, जो हायर पर्पस है, एक है आप इनमें से ये करोगे या ये करोगे, जो आपका गोल था वो वही होता है. और ये आता कहाँ से, एक प्रॉब्लम, आपका माइंड आपको हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि इस चीज का रूट कॉज क्या है. तो अगेन समथिंग दैट एनएलपी हेल्प्स अस विद यूजिंग पार्ट्स इंटीग्रेशन, हेल्प्स यू रिजॉल्व योरसेल्फ, तो एक होलनेस क्रिएट पर करता है. परफेक्ट, आई थिंक इसको इस तरह से रिलेट किया जा सकता है कि पीपल व्हेन दे हैव ऑप्शंस दे आर फोकसिंग ऑन द ऑप्शंस, बट उसके पीछे की रीजनिंग पे फोकस नहीं होता. दे डोंट रियली आस्क देमसेल्व्स व्हाई, कि कोई ऑप्शन उनके पास है तो क्यों है, एंड दैट इज व्हाई दे एबल टू रिजॉल्व टू अ पॉइंट कि जहां पे वो कोई एक ऑप्शन को पिक एंड चूज करते हैं. एंड बाय द वे, विद ऑल ऑफ द कमेंट्स दैट यू हैव मेड, आई थिंक ऑल ऑफ दीज मेक सेंस. एंड बीइंग मुस्लिम, बाय द वे, हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं. सो इफ यू जस्ट वर टू हाईलाइट, फॉर एग्जांपल व्हेन यू मेंशन के नेगेटिविटी एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक की अगर हम बात करें, तो इसमें बड़ी सारी गाइडेंस हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिलती है. सो स्पीकिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, मैं अगर बात करूं, so couple of months back I met someone, from the outside, when you speak to them, when you talk to them, you will find out कि यार बहुत सारे मसले हैं जिंदगी में, and I cannot explain, and cannot show you what kind of mental state I was in कि यार ये बंदा survive कैसे कर रहा है. But then when I spoke to that person, and then I figured out कि उसका शुक्र का लेवल शदीद आसमानों पे है. एंड देन आई वाज लाइक कि मतलब जिंदगी में शायद उसकी जिंदगी में 100 मसले हो सकते हैं, मेरी जिंदगी में शायद 2 मसले हैं, बट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज समवेयर बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. और वहां पे आके मैं रुक गया था. मैंने कहा यार ये चल कैसे रहा है. सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग दैट्स आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम एज वेल, कि शुक्र के साथ बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं, देयर आर आउटकम्स. एंड प्लस अगर हम बात करें कि जिस तरह हमने बहुत सारी चीजों की बात की, नेगेटिविटी, नेगेटिव सेल्फ टॉक की, और कॉन्फ्लिक्ट की, या फिर इमोशंस की बात की, तो बड़ी सारी गाइडलाइंस हमारे पास रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है कि अगर हम उनको भी फॉलो करें तो देयर ऑलवेज मेंटल मैथ बिहाइंड इट. सो हम उस लॉजिक को शायद ना भी समझें, लेकिन दैट्स आल्सो इन द मैकेनिकल फेज अवेलेबल टू अस, कि अगर वो अप्लाई करना शुरू करते हैं जिंदगी में तो बहुत सारे मसले जनरली वैसे ही कम हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अगर मैं एनएलपी कहना चाहूंगा तो वो मुझ पे हंसेगा कि यार क्या बातें कर रहे हो. बट इफ आई वर टू टेक लर्निंग्स, आई वुड ऑलवेज गो टू हिम कि यार ये मेंटल पीस अचीव कैसे किया, एक्सप्लेन इट टू मी हाउ यू हैव डन दिस. सो इन ऑल ऑफ द टाइम्स आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारी मैकेनिकल जिंदगी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है हम. सो वी ऑलवेज नीड दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को मैप करें और कहाँ पे जाके उनका सोल्यूशन ढूंढें. सो अगेन एनएलपी व्हेन इट कम्स इन प्ले, तो बहुत सारी चीजें जिस तरह से आपने बताई कि इंटरवेंशंस और टेक्निक्स के थ्रू देयर आर वेज टू फिगर आउट, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑन योर ओन. तो कोई आपको लेके नहीं चल सकता, बट विद अ क्लियर माइंडसेट इन सारी बिहाइंड द सीन्स आपकी थॉट्स चल रही हैं, इफ यू आर एबल टू मैप देम, सो वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो लाइक वाइज, फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस तरह से आपने बात की इमोशंस का कंट्रोल या फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक की, सो आम जिंदगी में अगर हम बात करें तो टिपिकली जब आप उन लोगों से मिलते हैं जो कि रिलीजियसली या फिर जिंदगी में बड़े क्लियर होते हैं, तो वो हमेशा आपसे एक बात कहेंगे कि यार टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर डे यू शुड ऑलवेज सिट डाउन एंड स्कैन थ्रू योर डे कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें की हुई है. सो दैट्स वन पार्ट वेर यू कैन ब्रिंग क्लैरिटी कि यार ये मैंने 4 चीजें गलत की थी, एंड आई शुड बी फोकसिंग ऑन दिस.
कि मैं 4 बातें मैंने नहीं कहनी चाहिए थी या 4 चीजें नहीं करनी चाहिए थी, एंड यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर फैक्ट दैट यू डन। फॉर एग्जांपल, मैंने आज काम बहुत जबरदस्त किया एंड आई शुड मेक दिस पार्ट ऑफ माई हैबिट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगेन एनएलपी के थ्रू भी अचीव की जा सकती हैं। एंड ऑलवेज आई कैन नॉट एग्री मोर कि बहुत सारे लोग व्हेन दे आर प्रोफेशनली पर्सनली स्टक उनके इस तरह के मसाइल होते हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन। अगली सवाल की तरफ चलते हैं। सो विद दिस बिल्कुल। दीज ऑल टेक्निक्स, तो पहली चीज तो ये बताइए कि you're someone who's NLP expert. You have been coaching for a while, and for someone who is trying to learn this, so पहली चीज तो ये बताएं कि क्या आपने ये किसी कोच के साथ करना है, या आप किसी भी लेवल पे एनएलपी की टेक्निक्स को सीख के अपनी सेल्फ हेल्प खुद कर सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसा मैकेनिज्म है या सिस्टम है जहाँ पे विल यू ऑलवेज नीड अ कोच विद यू, और यू कैन लर्न इट फॉर योर सेल्फ कि आप टेक्निक सीखने के बाद अपनी वेलबींग पे खुद काम कर सकें। अच्छा, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, द थिंग अबाउट एनएलपी हियर इज कि इसको बनाया ही इसलिए गया है कि अ पर्सन कैन हेल्प देमसेल्फ व्हेनेवर नीडेड। सो व्हेनेवर वी ट्रेवल ऑन अ प्लेन, वी हियर द एयर होस्टेस से कि अपना मास्क खुद पहने, फिर दूसरों की मदद करें, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो एनएलपी का भी यही एक आइडियोलॉजी है कि यू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, यू फिल अप योर कप टू 100%, एंड देन यू हेल्प अदर्स शुड यू वांट टू। तो एनएलपी में जो उसकी ट्रेनिंग्स इस तरीके से बनाई गई हैं कि आपको वेल इक्विप किया जाता है कि अगर आप किसी भी नेगेटिव चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुड इट बी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव इमोशन, एनीथिंग लाइक दैट, तो खुद को उस स्टेज से कैसे बाहर निकालना है, कैसे अपने आप की सेल्फ हेल्प करनी है, अपने आप को लेके चलना है जिंदगी में, पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एनएलपी की ट्रेनिंग में आपको एक एक पॉइंट का बताया जाता है। इफ इट्स रिलेटिंग टू लेट्स से डे टू डे स्ट्रेस, एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी लेट्स से इमोशनल कंसर्न या रिलेशनशिप वाइज कुछ भी मसले होते हैं, तो एनएलपी की ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है दिस इज सर्टेन थिंग दैट यू आर फेसिंग, हाउ टू इनकाउंटर इट। तो you learn it in a way where you can help yourself, where you can learn it for yourself and for others too. And the thing you mentioned कि coach के साथ होता है, तो that is also possible because few things are required जहाँ पे आपको किसी ना किसी coach की या mentor की जरूरत पड़ती है। I'm not saying here कि नहीं, आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि you don't need anyone else in the world. That'll be wrong because we all need someone in our life, someone to help us, someone to just show us the light, हेल्प अस थ्रू थिंग्स। तो मेंटोर और कोच ऐसे होते हैं जो इस टाइम पे आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। हाउएवर एनएलपी की ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि आप खुद को एम्पावर कर रहे हैं कि इफ यू फील लाइक सम ट्रिगर पॉइंट्स, अगर आप स्ट्रेस या एंजाइटी रिलेटेड आपको कंसर्न्स हैं एंड यू फील लाइक कि कुछ ट्रिगर हो रहा है, यू नो व्हाट टू डू देन। तो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा, you'll know the first option you can resort to. You can help yourself there. Once done, you're in a better state, you're in a calmer state, you can call whatever professional you have, whoever you have as your mentor. तो ये एक होता है कि आप सेल्फ हेल्प भी कर सकते हैं, दूसरों को भी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड एनएलपी। चलें, जबरदस्त। अच्छा, दूसरी चीज इसके बाद चलते हैं उस तरफ के कोई शख्स एनएलपी का कोच बनना चाहता है, एक्सपर्ट बनना चाहता है, जिस तरह के आप हैं, और इस पे मैंने आपसे सवाल भी पूछा था बाय द वे कि व्हाट्स द पाथवे फॉर दिस। सो ओवर टू यू के क्या पाथवेज हैं, व्हाट इज द प्री रैक फॉर ज्वाइनिंग इन, व्हाट इज रिक्वायर्ड कि कोई बेसिक इन आपकी कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए इन साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग, एंड इफ नॉट व्हाट इज द पाथवे, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, if there are any sort of modules या phases हैं, so over to you. Okay. There is no such prerequisite to join NLP training programs. You just need to have that compassion. Yes, I'm ready for this change in my life, and that's all. Because NLP की ट्रेनिंग में ना कुछ requisites नहीं डाले हुए कि आपका ये बैकग्राउंड होना चाहिए या एजुकेशनल में ये क्लेम होना चाहिए, एनीथिंग। इट्स ओपन टू एवरी पर्सन हु वांट्स टू हेल्प देमसेल्फ एंड लेटर ऑन अदर्स एज वेल। और इसमें ये हो गया कि अगर आप साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, वेल एंड गुड। इफ यू आर नॉट, दैट्स कंप्लीटली फाइन। क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेनिंग बनाई है, एक वी कॉल इट एक्सेलरेटेड लर्निंग पाथ, जहाँ पे महीने या सालों नहीं लगते हैं। इट टेक्स डेज एंड वीक्स फॉर यू टू लर्न एनएलपी एंड ट्रेन योरसेल्फ दैट वे। अगर आपको ऐसी ट्रेनिंग मिल जाती है जहाँ पे आप सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट।
सो एनएलपी की ट्रेनिंग में ये होता है कि कोई आपको किसी चीज की चेक की जरूरत नहीं है. यू विश टू वर्क ऑन योर सेल्फ, you wish to join life coaching, you can do NLP training program. And you ask for pathway. So for pathway, I'd say you can search for Towards Brilliance. That's one of the organization that's providing NLP training program. मैंने भी वहीं से की हुई है. And many other people who are very diversified background, from very diverse background, उन्होंने वहां से Towards Brilliance से NLP की ट्रेनिंग की हुई है. अब जो क्वेश्चन वाज कि कौन कर सकता है, तो व्हेन आई से आई हैव सीन पीपल लाइक हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, पीपल हु आर इन मार्केटिंग और सेल्स, एचआर, टीचर्स, तो जिनको भी जरूरत होती है दे डू दैट. अब उनके पर्सनल गोल्स भी होते हैं, प्रोफेशनल वाइज गोल भी होते हैं. कुछ इसको एज अ करियर लेके जाना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे जॉइन such trainings. And I see them making things like amazing for themselves. जो वो अपने आप को जिस तरीके से चेंज कर रहे होते हैं, एम्पावर कर रहे होते हैं, दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्रोसेस. चलें जी, जबरदस्त. एक इंटरेस्टिंग सवाल इस पे आता है, वो ये कि वो सारे लोग जिनको एक्चुअल में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो रीच आउट करके सपोर्ट गेन कर सकते हैं, एडवाइस ले, बट कमिंग टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड वेयर इन थिंग्स लाइक दैट, तो वहां पे एनएलपी क्या हेल्प कर सकता है? सो व्हेन यू गेट सच केसेस कि जहां पे एक बंदा आता है और कहता है कि यार आई कैन फ्लाई, आई थिंक आई कैन फ्लाई, एंड माय दिस इज माय सेल्फ टॉक, एंड ही वांट्स टू जंप, राइट? सो वेयर डू यू टेक देम एंड व्हाट इज द गाइडिंग स्टेप्स फॉर देम? Okay, if someone specifically comes like I can fly and wants to jump off the roof, तो वहां पे we give them this reframing that yes, indeed you can fly, but not from the roof. You can fly high career wise or personal wise. You can fly high in achieving things like that. So that's the reframing we want to give, because if someone has that confidence in themselves कि yes, I can fly high, तो why not, instead of putting them in a frame के नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, आप उड़ नहीं सकते, आप उड़ सकते हो जहानत के तौर से, अपने माइंड को लेके अपनी जिंदगी में उड़ सकते हो. अचीवमेंट वाइज सक्सेस की जो लेडर होती है, आप वहां से उड़ सकते हो. तो डेफिनेटली नॉट फ्रॉम द रूफ, बट या इस तरीके से आप उड़ सकते हैं. एंड इफ समवन कम्स फॉर हेल्प, सो यस, आई डू प्रोवाइड सेशंस एज वेल एट एक्सपर्ट पेन. सो यू नो वेयर टू फाइंड मी देन फॉर डन सेशंस. डन डन, परफेक्ट. वन लास्ट क्वेश्चन. सो सारे टॉपिक्स पे हमने टच किया. हम्म. सो देयर आर कपल ऑफ केसेस जहां पे पर्सनली मैं खुद देख चुका हूँ कि बहुत सारे लोगों से जब बात की है या फिर जो लोग आ रहे होते हैं, एंड देन इट्स अ कॉमन केस वेयर पीपल आर गोना कम टू यू एंड एक्सप्लेन देयर इश्यूज. फॉर एग्जांपल समबडी कमिंग टू मी एंड एक्सप्लेनिंग कि यार मेरी पहली जॉब में ये मसला था, दूसरी जॉब में हम्म. ये मसला था, और तीसरी जॉब में ये मसला है जो कि मैं सॉल्व करना चाहता हूँ. एंड द रूट कॉज व्हेन यू sit down and try to grab more and more information, you find out one common thing is the person, right? So तीन चीजों में तीन केसेस में तीनों में प्रॉब्लम्स हैं, हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि बंदा बुरा है, बट when you dig deep down you find out कि यार common case यही बंदा है, and it's not the problem with them, they're not doing it intentionally, but there are a couple of things that they are doing very wrong कि जहाँ पे वो सेम चीज करने के बाद सेम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, and then uh, to make the thing worse they're also blaming यू नो सामने वाले को कि यार तीनों कंपनियां बेकार थी. ये प्रोफेशनली बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि जब कैरियर में इस तरह के ब्लॉकर्स आ रहे होते हैं, एंड देन पीपल टेंड टू पुट एवरीथिंग ऑन द अदर पार्टी एंड नॉट पर्सनली गेन फ्रॉम दैट कि यार मैं कहाँ पे अपने आप को जाके सॉल्व करूँ कि एक चीज डिफरेंट एस्पेक्ट में बार बार मैंने की और सेम रिजल्ट मुझे निकल रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बंदा जिंदगी में, हर कंपनी, हर तरह के लोग सेम है. So how do you figure that, and how do you start explaining it to the person कि यार with all due respect, with all due support, you need to figure out this जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये चीजें हैं which you're doing, and which is why you're getting the same results every time. Okay. So in NLP, we don't go about blaming, अच्छा ये आप में problem है, you have done this, you need to change yourself. We don't do that because this is something that we call as direct suggestions, and people don't like that. They have Hmm. tons of relatives and family members and friends telling them that something is wrong with you, buddy, you need to change that. If we also Hmm. do that, they're not gonna come to us. They're like, okay, you are the same, how can you help me? The technique here is for them to realize it on their own that this is something they need to work on. And it's best when it comes from within self.
Like you come to terms with, okay, this is something that's been happening. So what's the common ground here? What's the root cause? Okay, it could be me. So we need to get to that realization bit कि जहाँ पे वो खुद ही माने कि हाँ मेरे साथ हो सकता है ये कोई problem है. How can I resolve that? And some people have actually come to this realization. How do we get to that part is a specific questioning pattern. Now, under NLP, we have set of questions that are so on point that helps you to reflect कि अंदर क्या चल रहा है और जो जहन में चीजें चल रही होती है ना all that cluster वो Hmm. सामने आ जाता है clearly कि अच्छा ये मेरे साथ मसला है and they say it themselves only. What we are doing here, we just asking them questions कि ये क्या है क्यों है किस तरीके से and they themselves answering that. And that answering bit takes them to the realization, okay, ये मेरी तरफ से कुछ है. And then they ask, how can I change it? तो वहां पे I ask them the disclaimer question, do you want to change it? Like, yes. Now that I've realized it's been me all along, I really want to change it. That's when I give them a direct suggestion if needed. वरना वहां पे फिर एक different route होता है कि how exactly we can move ahead, क्या contingency plans हो सकते हैं या क्या तरीकेकार होता है. So that's how we go about. Perfect. Perfect. Thank you. Thanks a lot for the time, Khadija. And by the way, I have a lot of questions further. लेकिन हम करेंगे कि हम कोई और collaboration plan करेंगे, which is where we sit down and specifically talk about certain techniques, negative self-talk या जिस भी topics पे आपने बताया है. So we take a few approaches and then we start highlighting it to people so that they can basically get the idea, initial idea, okay, what sort of expectation they should have when they come to you and reach out for help. By the way, thanks a lot for the time, and glad you're part of the expert pin community. And from all of the comments that I can see regarding the people that have connected with you, only good things. So I think that's working for the people, and I'm hoping with all of the questions that we have taken so far in the session, that's also going to bring clarity कि कहाँ पे किन एरियाज पे लोग आपसे कनेक्ट करके टॉपिक्स पे हेल्प ले सकते हैं. So that's great. Again, Khatija is someone who's part of Expert Pen. She's an NLP expert. If you are looking for help personally, professionally, growth topics पे आपने बात करनी है, she's always available. Go book a meeting with her and uh, get your journey started with her. So Khatija, any last comments, feedback? For last comments and feedback, I'll agree with you here that if you're someone who's looking for sessions with me, then you can reach out to me via ExpertPin. You'll see the ID there. And again, this is a platform where not just for specific coaching, but there's a lot more career related, relationship related, more other purposes as well. So you just need to explore a bit where you feel stuck. And, there's no harm and shame in accepting that, yes, we all need help at one point. Nobody is perfect. Perfect is just a very exaggerated term. If you feel stuck, you need to move ahead of that state. एक्सपर्ट पिन पे जाएं और अपने जो भी आपको लगता है ऐसे कोच हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, फिक्स दैट मीटिंग एंड एक्चुअली शो अप. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. शो अप एंड मेक श्योर कि आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं. सो दैट्स समथिंग दैट आई से. And yeah, lastly, if you're someone who's interested in NLP training as well, getting certified, so you can look up Towards Brilliance or towardsbrilliance.com की website है. You can search for training programs there as well. So yeah, that's all I'll say. Thanks a lot, Khatija.